ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وفهما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. تمام تعریف تا حمد و ثنا رب ذوالجلال کنت بیسن بے شمار درود و سلام بر ذات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تہندس آلس تامت. سورہ نساء ابتدائی آیتک درس کرو اس رات مکمل اور رات کس درسس مز دژو میں تہ اشارہ کہ ات آیہ مبارکہس مز وحدت انسانیتک یا انسانی بھائی چارہ اور ہمدردی ہند بہترین اصول اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کرمت اور ضمن کرو میں ام کتھن تہ اشارہ ام آیتک حوالہ کہ یم زن مختلف دنہک ونکس حقوق نسواں علم بردار بنیمت اور جنہوں نے مصنوعی آزادی ان عورتوں کو دے رکھی ہے. بہرحال حقیقی آزادی یس زن یا حقیقی حقوق یم زن اصلی خواتین فراہم کر بہرحال وہ صرف دین اسلام ہے. ام پتہ یس زن آخری ٹکڑ یم آیہ مبارکک تر پہ تھوڑا بہت بھی بحث کرنے ضرورت. سہ گو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایو کہ یم زن خونی رشتہ آسن بہرحال ان کو ہرگز بھی پامال نہ کیا جائے. یعنی یم رحمی رشتہ آسن یا یم زن خونی رشتہ آسن ان کو توڑنے سے ڈرا جائے. بالکل یت پاٹھنس اللہ تبارک و تعالیٰ سن نافرمانی کرنے نش بچن گژھِ تتھے پٲٹھۍ گژھن یم خونی رشتہ ان کے توڑنے سے بھی بچا جائے. بہرحال امہ حوالہ کرے میں تہ برونٹھ کن مختلف قرآن پاک آیات تلاوت اور مختلف احادیث مبارکہ کرے میں تہ برونٹھ کن پیش کہ کۭژاہ فضیلت آمت صلہ رحمی ہز بیان کرنے قرآن پاکس مز تہ احادیث مبارکہ مز. سورہ رعد کے حوالہ اور سورہ محمد کے حوالہ ونیو میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رشتوں کو توڑنے والوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت برستی ہے. تکیاز قرآن پاک سے آیت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں پر لعنت بھیجتا ہے جو خونی رشتوں کو توڑتے ہیں. اور سورہ محمد مز پوڑ اس کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان مفتن لوگوں کو اس دنیا کا اقتدار عطا کرے گا تو سب سے پہلا کام وہ یہ کریں گے کہ ایک تو وہ زمین میں فساد برپا کریں گے اور دوسرا خونی رشتوں کو وہ یعنی ان کا پاس و لحاظ نہیں رکھیں گے، ان کو پامال کریں گے. بہرحال واریاہ آیات بلکہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ کم از کم 18 جائن پہ اللہ تبارک و تعالیٰ صلہ رحمی ہز یس زن امیک حوالہ آیات قرآن پاکس مز پیش یم درج کرمز. اور قطع رحمی اور یہ تھیا صلہ رحمی یس زن صلہ مانے جوڑنا یعنی رحمی رشتوں کو جوڑنا، اس کو عربی میں کہتے ہیں صلہ رحمی. قطع مانے کاٹنا، قطع رحمی امیک اپوزٹ امیچ ضد. قطع رحمی متعلق تہ انتہائی شدید وعید جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پنن احادیث مبارکہن مز بیان کرمز. اکس حدیث مز فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف روایت کہ لا يدخل الجنت قاطع الرحم یعنی رشتوں کو کاٹنے والا ہرگز بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا. ییژاہ وعید امچ آمز. البتہ اخ ز کتھ چھس بہ یم زن ویسن چھس تہ برونٹھ کن باون یم زن سانہ سوسائٹی مز مروجہ چھ اور ان کی اصلاح کی ضرورت ہے، اس لیے میں نے ان باتوں کو آپ کے سامنے پیش کیا. تہ چھو اکثر جمعہ کس خطبس پہ وچھان
और ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुम्मा के खुतबे में ये आयत अक्सर पढ़ते थे सूरह नहल की, इन्नल्लाह यअमुरुकुम बिल अदली वल इहसानी व ईताइ ज़िल कुर्बा। अब देखिए, जुम्मा का मौका इंतहाई अहम मौका, और इस मौके पर तमाम लोगों का इज्तिमा होता था और बार बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही बात खुतबे में बयान करते थे। सो क्या इन्नल्लाह यअमुरुकुम बिल अदल, बेशक अल्लाह तबारक व तआला आपको अदल करने का, अदल का हुक्म देता है, वल इहसान, और किसका हुक्म करता है? एहसान, व ईताइ ज़िल कुर्बा। अब ये इतनी इंपॉर्टेंट और इतनी क्या वन यूता ये इंपॉर्टेंट का और इतनी अहम बात है ये कि बार बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुम्मा के मौके पर अपने सहाबा को ये बात याद दिलाते थे कि ज़िल कुर्बा जो है, बहरहाल इनके साथ हुस्न मामला और इनके साथ सिला रहमी का मामला होना चाहिए। और दयम कथ वन, अगर आपको याद होगा हमने सूरह बकरा में आयतुल बिर पढ़ी थी। आयतुल बिर तथ मामला तमि सातन करे में अर्ज कि ये वो आयत है जिसमें नेकी का जामे तरीन तस्वुर बयान किया गया है। यानी अगर कह वन तो नेकी हज डेफिनेशन क्या, बहरहाल मुख्तलिफ डेफिनेशन है कि नेकी हज आसित, मगर कुरान ने जो डेफिनेशन नेकी की दी है, क्या उससे बढ़कर कोई डेफिनेशन हो सकती है? बहरहाल आयतुल बिर्रस में पढ़ कि अल्लाह तबारक व तआला फरमान, लाइसल बिर्रा अन तुवल्लु वुजूहकुम क़िबलल मशरिक़ि वल मग़रिब वलाकिन्नल बिर्रा मन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिहि वल किताबि वन नबिय्यीन। ये तो वहां पर कहा गया व आतल माला अला हुब्बिही ज़विल कुर्बा। अब यहाँ पर नेकी जो है उसके बारे में क्या कहा गया कि नेकी ये नहीं है कि आप अपना ये जो चेहरा मशरिक या मगरिब की तरफ करो, हालांकि तहवील क़िबला के सिलसिले में ये आयत आई थी, मगर फिर नेकी का पूरा जामे तस्वुर बताया गया कि लाइसल बिर्रा अन तुवल्लु वुजूहकुम क़िबलल मशरिक़ि वल मग़रिब वलाकिन्नल बिर्रा, बल्कि नेकी ये है मन आमन बिल्लाह, जो अल्लाह पर ईमान लाए, व मलाइकतिही वल किताबि वन नबिय्यीन, और फिर साथ में ही ईमान के साथ किसको जोड़ दिया गया? व आतल माल अला हुब्बिही ज़विल कुर्बा, जो अपने माल को अल्लाह की मोहब्बत में, अल्लाह की चाहत में किनके बीच में खर्च करता है? ज़िल कुर्बा। और अजीब इत्तिफाक इस आयत में अगर आप देखेंगे व अक़ामस सला व आतज़ ज़का, ये इसके बाद आता है। इससे पता चलता है कि अक़रबा और खूनी रिश्तों के साथ सिला रहमी ये कितना बड़ा अमल है और ये कुछ फजीलत वाजी अमल है। अच्छा, एक हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसी आयत के तनाजुर में, तफसीर में, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाओ, क्या आपको पता है कि सबसे बेहतरीन सदका कौन सा है? यानी क्या तशवा पता, क्या वन होता है कि सारे को बेहतरीन सदका कुछ? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके जवाब में फरमाया कि बेहतरीन सदका वो सदका है जो आप किसी रिश्तेदार पर सदका करो जो आपसे नाराज हो। यानी तमिस रिश्तेदारस पे करन खर्च, तमिस रिश्तेदारस सदका दिन जिसके साथ आपकी अनबन हो, या जो आपको अजियत पहुंचाता हो, या जिसके साथ आपकी बनती नहीं हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाओ ये सारे को बेहतरीन क्या सदका। अच्छा, अब इस सिला रहमी के बारे में थोड़ा बहुत आप मुझे क्या कन्फ्यूजन, वो मैं दूर करना चाहता हूँ। आम तौर पर हमारा मामला ये है कि हम अपना ताल्लुक उन रिश्तेदारों के साथ जोड़ते हैं जो वहां से भी हमारे साथ अच्छा ताल्लुक करते हैं। यानी युस में इज्जत दिवन, युस में सहित रुत मामला कारण, आम तौर पर हम उसी को यहाँ से भी लिफ्ट देते हैं। मगर हदीस में फरमो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमो कि ये सिला रहमी नहीं है कि आप उस रिश्तेदार के साथ अच्छा सलूक करो जो आपकी कदरदानी करता है या जो आपके साथ अच्छा सलूक करता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सिला रहमी नहीं है, बल्कि फरमो ये तो बदला हुआ। ये वो क्या बद, यानी जो नेक अमल उसने किया या जो नेकी उसने आपके साथ की, उसने आपके बदले में या उसके बदले में आपने उसके साथ क्या की? नेकी की। अलबत्ता फरमो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तो सिला रहमी नहीं है, ये तो अदले का बदला है, यानी बदला चुकाना है। नेकी सिला रहमी ये है कि सिल मन कता, कि तू उसके साथ जुड़े जो तुझसे काटे। यानी युस चे निश दूर गए, युस चे ये तकलीफ आसी वातनावन, युस चे नफरत आसी कारण, युस चे इजा आसी वातनावन, उस रिश्तेदार के साथ जुड़ना ये हकीकी सिला रहमी है। ये हकीकी सिला रहमी। बहरहाल अत सिलसिलस मज सहाबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिदमतस मज अर्ज करुन, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे रिश्तेदार जो हैं मैं उनके साथ बेहतरीन मामला करता हूँ, बहुत तुम बड़ा बेहतरीन मामला हुस्न सलूक तुम, लेकिन वो वहां से मुझे
इसका ये जन उल्टा जवाब देते हैं, वो मुझे तकलीफ पहुंचाते हैं, कभी नाजेबा अल्फाज कहते हैं, कभी मुख्तलिफ किस्म की बेइज्जती करते हैं, तो क्या मैं उनके साथ ये मामला चालू रखूं? क्या बकरा तमसी मामले को सिला रहमी हूं चालू? रसूलुल्लाह फरमो वापस मन, अगर यही मामला है, यानी अगर वाकई चोन ये कथ या अगर चोन मामला वाकई सही, अगर यही मामला है तो आप उनके मुंह में खाक भरते हो, यानी आप अपना काम किए जाओ, आप उनके मुंह में क्या भर रहे हो? खाक भर रहे हो। गो ये हकीकी सिला रहमी। और इथे अथ मामलस मज सिला रहमी के मामले में अब हमारा मामला क्या है? आम तौर पर तमिस इंसानस या तमिस रिश्तेदारस प्रसन यमिस कमीज यजारस प्रेस ठीक, या यमिस इंग्लिश पे वन वाइट कॉलर यूजन आसे, उसके साथ हमारा मामला अच्छा होता है। जो जरा कमजोर होता है या ये जरा बहुत आसान माशी तौर पर या सोसाइटी में कम स्टेटस बोल, उसको हम ज्यादा लिफ्ट नहीं देते हैं। तो हदीस की रूह से ये सिला रहमी नहीं है, बल्कि फिर तो आप अपने रिश्तेदारों के साथ कौन सा मामला करते हो? बदले का मामला करते हो। जो आपके साथ जैसा मामला करता है वैसा आप उसके साथ मामला हकीकत में ये सिला रहमी क्या। दूसरी बात, अब इसमें आपको याद गुमुत क्लियर कि सिला रहमी का असली वन सिला रहमी ये नहीं है कि जो आपके साथ अच्छा बर्ताव करे आप सिर्फ उसी के साथ अच्छा बर्ताव करें, बल्कि सिला रहमी के हकीकी मानन ये कि जो आपके साथ कता रहमी करता है, कता ताल्लुकी करता है, बहरहाल उसके साथ आपको यहाँ क्या करना है? सिला रहमी करनी है, रुत ताल्लुकात कारण। बहरहाल अगर तो याद आए, मुझे वो आयत याद नहीं है लेकिन आप रेफरेंस दिम आयत नंबर गालिबन 30 और 33 सूरह नूरस में, उसको आप पढ़िएगा कुरान पाक में। रवायत में आमद हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनका मकाम हमारे सामने, सबों के सामने कोई मख्फी बात नहीं है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और पूरी उम्मत का ये इजमा है कि अगर कोई इंसान अंबिया के बाद अफजल तरीन है तो वो कौन है? वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। उमन मुतलिक यून कि यम सात हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हान पे स तोहमत लज, यानी वाकई इफक का जो मामला है, बहरहाल उस वक्त जो प्रोपागंडा और जो तूफानी बेतमीज बर्पा किया मुनाफिकीन ने हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में, कुदरती बात है, इससे हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला का दिल भी दुख गया, ठीक है, मोल ओस। बहरहाल इस प्रोपागंडा में उस वक्त सादा लो मुसलमान भी कुछ शामिल हो गए, यानी तुम ते आय कहिस प्रोपागंडा मज यमन मुनाफिकीन हिंदिस प्रोपागंडा मज। तो इन्हीं सादा लो मुसलमानों में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के एक करीब के रिश्तेदार भी थे। तुम मुनाफिकीन हिंदी प्रोपागंडास में वो भी इसमें शामिल हो गए और उन्होंने भी कुछ नाजेबा अल्फाज और कुछ बहतान जैसे अल्फाज किन के बारे में कहे? हजरत आयशा सिद्दीका, मगर थे तो यह हजरत अबू बकर सिद्दीक के करीब तरीन रिश्तेदारों में से। अच्छा, हजरत अबू बकर सिद्दीक का मामूल था, उनका यह मामूल था इससे पहले कि हर महीने वो कुछ ना कुछ खर्चा देते थे इनको, यानी यमी बहतान यमी अमिस पे ये कोर इल्जाम तराशी हजरत सिद्दीका पे, हजरत अबू बकर सिद्दीक अम ब्रोट अमन खर्च खातर कहना क्या प्रेफ तो सोजन। हजरत अबू बकर सिद्दीक बड़े मालदार आदमी थे, उनकी बड़ी तिजारत थी मक्का मुअज़्ज़मा में, यो सठा नरमी पहमत रसा, तो ये इनको कुछ वजीफा या कुछ कुछ ना कुछ खर्चा देते थे। यम साथ ये अत तहमतस मज तूफानी बेतमीज़स मज ये शामिल गो, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने तहिया कर लिया, उन्होंने कसम खा ली कि आज के बाद में अब इसको कोई मदद नहीं करूंगा, वहीं करना भी अमिस मदद या अमिस करना भी क्या कसम खा ली। तो इस पर हजरत अल्लाह जल्ला शानू ने सूरह नूर में आयत में 30 और 33 यूजतपुर आयत नाजिल की, और उस आयत का ये तर्जम जिन लोगों ने इस बात की कसम खाई है कि वो अपने करीबी रिश्तेदारों को सिला रहमी या उनके साथ सिला रहमी का मामला नहीं करेंगे, तो उनको चाहिए कि वो फौरन रुजू करें। तुमन पास कारण फौरन एम कासम निश क्या रुजू। क्या वो ये नहीं चाहते हैं कि अल्लाह भी उनके साथ माफी का मामला करे? क्या तुम छना व्यसन कि अल्लाह तबारक ताला करे तुमन से कयामत? तो क्या पता चला इस आयत से कि जो शख्स चाहता है कि उसके साथ कयामत के दिन माफी का मामला होना चाहिए, तमिक मतलब वो सगस पाने रिश्तेदार से क्या करन, सगस कारण तुमन से माफी हुन दरगुजर और सिला रहमी हुन मामला। इतना ये अजीम और इतना ये अजीम अमल है। बहरहाल ब्या कछ सच ये कुछ आमाल उलमा ने बताए हैं
कुछ तरीके उलमा ने बताए हैं जिनसे ये सिला रहमी और जिनसे रिश्तेदारों के बीच में मोहब्बत पैदा होती है। तो मामला क्या है? बहरहाल फरमो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पन्ने से हदीस में फरमो तहादौ यानी आप एक दूसरे को हदिया दिया करो, इससे मोहब्बत बढ़ती है। इसलिए ये सिला रहमी या रिश्तन मज मजबूती पैदा करने सारे खुद बेहतरीन तरीक वो है कि आप एक दूसरे को क्या दिया करो? हदिया दिया करो। कैसे हदिया दिया करें? कुछ साथ आप रिश्तेदार खुशी हुंद मौका, उसका कोई बच्चा पास हो गया इम्तिहान में, या उसने कोई नई गाड़ी लाई, या उसने मकान तामीर किया, या उसके यहाँ शादी है। बहरहाल अगर इस हदिया निमो तो इस हदिया लेने से क्या होता है? इससे मोहब्बत बढ़ती है, क्योंकि रसूलुल्लाह ने फरमाया हदिया देने से मोहब्बत। अलबत्ता वाज़िया रहे कि ये चीज गश्त रस्म ही बनान जो हमने आज ये 10 बोसा का या वर्ताव बनन, इसको तो उलमा सूद में गर्दानते हैं। अलबत्ता अगर ये नीयत हो कि ये मेरा भाई है, खुशी का मौका है, मैं अपनी तरफ से इनको हदिया लेता हूं और वापसी की कोई उम्मीद नहीं रखता है, तो ये बिल्कुल जायज है, बल्कि ये मुस्तहब अमल है, सुन्नत का अमल है। तो इन चीजों से भी क्या बढ़ती है? मोहब्बत बढ़ती है। दयम का रास्ता याद थोमुत उलमा ने अजीब बात लिखी है, ये बोय आसन अमिस क्या कौशर पर वन कौशर पर क्या बॉयस वन यह शरीक वन शरीक। अब ये शरीक का लफ्ज जो है उलमा ने इसकी बड़ी अजीब तवजी की। शरीक लफ्ज बासन बाज़ाहिर गाली, लेकिन ये अच्छा लफ्ज है। शरीक का मतलब है कि ये मेरे गम में भी शरीक है, ये मेरी खुशी में भी शरीक है, ये मेरे हर नरम और गर्म जो हालात आएंगे, सर्द और गर्म हालात आएंगे, इनमें ये मेरा भाई, ये मेरा रिश्तेदार क्या है? शरीक है। वो इसका मतलब ये तभी शरीक होगा जब हम इसको हर खुशी और गमी में क्या करेंगे? शरीक। तो एक बात उलमा ने इस रिश्तों को मजबूत करने की यह भी लिखी है कि जब भी आपके दिल या आपके घर में कोई खुशी का मौका है, तो उस खुशी के मौके में आप किनको शरीक कर लीजिए? आप अपने करीबी रिश्तेदारों को, अपने इन खूनी रिश्तों को क्या कीजिए? शरीक कीजिए। और यम सातन का खूनी रिश्तस मज का गमी आस, आप यहीं से चले जाइए, उस गम में उनके शरीक हो जाइए। इससे भी क्या होता है? रिश्तन मज मजबूती पौध। और सबसे बेहतरीन अमल यम रिश्तन मज मजबूती पौध गसन, तो ये उलमा ने लिखा है कि आप अपने रिश्तेदारों की मदद नकदी देकर अदा कीजिए। यानी यम सातन कांस्तमन गरीब आस या किसी के हालात खराब चल रहे हैं, आप कर्जा उनको दीजिए, आप उनको पैसा दीजिए, आप इनको मदद कीजिए, चाहे सौदा रंग का चाहे इनके बच्चों को कभी कपड़ा ला के देते हैं, मगर ऐसे अंदाज में कि सदकस मुतलिक या देने के मुतलिक रसूलुल्लाह ने फरमाया कि ऐसा अंदाज अपनाइए कि जो कुछ दाएं हाथ ने खर्च किया वो बाएं हाथ को मालूम। अब अजीब यहाँ पर हमारे माशरे में क्या हुआ है? कुछ साथ पन्निस भाईस का मदद कर, करीबी भाई और अपना सगा भाई, मगर गौर से इतला कर अमिश खानदारी अथो मैं कमिस पढ़। अब क्या मामला होता है? औरत ज़ात तो औरतें ही होती हैं, और ये कुरान ते गवाही दिवन, और हदीस में भी है कि जिसन सिनफी तौर पर आसन ये नाजुक और इसमें उतना वो बर्दाश्त की जिसन सलाहियत। अब मामूली भाइयों के बीच में कुछ चपकलिश हो गई, ये जनान जन अब ये सुनाती है इसको शकना सो ये फलान मौके पर मेन खानदारन दिसन रपियस 10 सास, फलान मौके पर अन नमिस हमिस कमीज यजार। अगर मदद करनी है भाई को, ये तो अपना आपका भाई है, इसमें कौन सी बड़ी बात है कि आप इस अंदाज से इसकी मदद करते हैं कि किसी को कानो कान इसकी खबर नहीं होती है। ये सारे खुद बेहतरीन तरीक यम से जन रिश्ते मजबूत गसन। अच्छा, इसी तरह से अब हमारे यहाँ क्या मुसीबत पड़ी है? कारण काम हम उसी भाई को मदद करेंगे अगर जितने भाई, हालांकि इस्लाम का ये मिजाज ही नहीं है कि आख बोय क्या अमीर ब्याख तफावत होगा थोड़ा सा, मगर इतना तफावत कि उसको फाके लग रहे हैं और वो 7 किस्म के पकवान खाता है, ये इस्लाम का मिजाज नहीं है। बल्कि इस्लामिक मिजाज ये कि अगर आख बोय 7 सिन खावन, उसका दूसरा भाई कम से कम अगर 5 तो नहीं 4 तो नहीं, कम से कम 1 सालन तो उसके घर में होनी चाहिए। वरना तो रसूलुल्लाह ने फरमाया कि वल्लाहि वो मूमिन नहीं है, वो मूमिन नहीं है जिसका हमसाया जो खुद पेट भरकर खाए और उसका हमसाया क्या हो? भूख। ये तो हमसाया के बारे में है, जो रहमी रिश्ते होंगे उनके बारे में कितनी ताकीद होगी फिर। बहरहाल यम क्या मामला। अब हमारे मामला क्या है? क्या गोमुत आज दिखावे के दिखाव किस मामलस में यूता ब्रोन गमित, जबकि पहली ही हदीस जो बुखारी में है और मोमिन को यह हर वक्त याद रहनी चाहिए, इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमलों का दारमादार किस पर है? अब मोमिन का क्या होना चाहिए? हर अमल
صرف لوجہ اللہ، اللہ کی رضا کے لیے. اس کیا آز کران کم، اب میرے بھائی کی شادی ہے یا میانس بٲیس ات کیا ون خوشی ہند، اب میں اس کو دیتا ہوں پیسے مگر نیت چیز یہ تھاون پگہ دی میں یوتا جی ساس ات کیا واپس. یا اب وہاں پر معاملہ ہے سٹیٹس کا، وہاں پر معاملہ ہے ہاؤ باؤ کا، دکھاوے کا، وہاں میں جاتا ہوں. دوسرا بھائی میرا کوئی سہ بالکل غریب، حالانکہ اس کو تو زیادہ مدد کی ضرورت تھی مگر تت ما ہاؤن وول کہیں، تت ما شو آف گھن وول کن، وہاں پر ہم خرچ کرنے کے لیے تیار. اب بتائیے کیا یہ خرچ اللہ کے لیے ہے یا یہ لوگوں کے دکھاوے کے لیے ہے؟ یہ کمن خاطر خرچ کران؟ یہ تو سیدھے لوگوں کے دکھاوے کے لیے. اس لیے یوتان یمن چیزن اصلاح کرو، یوتان یمن معاملات پر سنجیدگی سان سوچو، اور جب تک نہ ہم ہر عمل کو اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے نہیں کریں گے تب تک ہمارے رشتوں میں مضبوطی نہیں ہوگی، اور تب تک یہ عمل ہمارے یہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہونے والے نہیں ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ سے مگو دعا کہ سہ دین اسہ صحیح عمل کرنے توفیق، اور سہ دین اسہ یم زن رحمی رشتے خونی رشتے ان کو نبھانے کی ہمیں صلاحیت عطا کرے، اور ان کی قدر پہچاننے کی ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا کرے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.